آغاز میں آپ کو خبر دیں، پیپلز پارٹی نے شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ میئر کراچی نے حبیب بینک پمپس ہاؤس کا افتتاح کر دیا۔ نئی لائن سے 5 سیکٹرز میں پانی کی دستیابی بڑھے گی۔ میئر کراچی کا ضلع ویسٹ میں ترقیاتی کاموں کا دورہ۔ مرتضی وہاب نے باب خیبر روڈ بحالی اور میٹرول منصوبے کا معائنہ کیا۔ افسران نے میئر کراچی کو منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ مرتضی وہاب کا شہر کی روشنیاں بحال کرنے کا عزم، بولے شہر بھر میں ترقیاتی کام جاری، مسائل حل ہوں گے۔ کراچی کے اندر مختلف حادثات اور واقعات میں مزید 4 ہلاکتیں۔ مزدور کے عالمی دن پر مزدور کی بیٹی قتل۔ ملیر یار گوٹ میں ملزم نے سسرالیوں پر حملہ کیا۔ 13 سالہ لڑکی کو چھریوں کے وار سے قتل کیا۔ مقتولہ کی والدہ شدید زخمی۔ پورٹ قاسم میں شہری ڈوب گیا، واٹر ریسکیو ٹیم نے لاش نکال لی۔ موچکو کے کیسلا گوٹ میں دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 8 مزدور زخمی ہو گئے۔ لانڈی جیل چھوٹا بحریہ کے قریب 22 سالہ امان حادثے میں جاں بحق۔ اسکول بجٹ کی نگرانی کے لیے ہر ضلع میں سہولت کمیٹیاں قائم۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر 3 رکنی کمیٹی کی سربراہی کرے گا۔ چیف مانیٹرنگ افسر اور کوارڈینیٹر کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی روزانہ 2 گھنٹے بجٹ امور پر کام کرے گی۔ پیش رفت رپورٹ روزانہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جائے گی۔ ڈیفنس فیز 7 میں سنیپ چیکنگ کے دوران پولیس اہلکاروں سے مبینہ بدسلوکی۔ خاتون پولیس افسر کے بیٹے کا پولیس اہلکار سے جھگڑا، گریبان پکڑ لیا۔ پولیس نے سابق پولیس افسر کے بیٹے کو حراست میں لے لیا۔ ڈبل کیبن گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی۔ پولیس سرائے کے مطابق ڈبل کیبن گاڑی پر ملزم نے پولیس کی جعلی نمبر پلیٹ لگائی تھی۔ ڈبل کیبن گاڑی کی اصل نمبر پلیٹ پرائیویٹ نکلی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتیں تقریباً 400 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہیں۔ مہنگائی کے سطح شہریوں کا کہنا ہے کہ محدود آمدنی میں اب زندگی گزارنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بڑا معاشی بوجھ ڈال دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کے بعد 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں نے فیصلے پر شدید رد عمل دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی آمدنی محدود ہے اور ہر ہفتے بڑھتی قیمتوں نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ آگے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے عوام کیا کرے گا۔ عوام کا کوئی سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا ہے۔ ابھی بیچ میں پہلے کتنا تھا؟ 522 روپے۔ سیاستدان ہے نا، یہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ آپ اگر 1000 روپے کی دیہڑی کماتے ہو، اس میں سے آپ 450 روپے کا پیٹرول ڈلواؤ گے تو بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤ گے؟ سر پہلے میں 200 روپے میں یہاں پہ جاب پہ آیا تھا، اب 450 روپے کا ڈلوانا پڑ رہا ہے۔ پہلے سمجھ لو 6000 روپے میرا پیٹرول تھا، ابھی 16000 روپے پیٹرول ہے۔ اب ایک تو روزگار نہیں ہے، دوسری بات ہے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، بندہ گاڑی میں پیٹرول ڈالے یا گھر چلائے کیا کرے؟ غریب بندہ تو نہیں کچھ افورڈ کر سکتا نا یار۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم کر کے 150 سے 200 روپے فی لیٹر کے درمیان لائی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ بڑھتی مہنگائی سے گھریلو خواتین کے لیے امور خانہ داری میں مشکلات۔ خواتین کہتی ہیں کہ سارا بوجھ غریب لوگوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے۔ جہاں ایک اسٹاپ کا کرایہ 20 روپے تھا، وہاں اب 30 روپے تک وصول کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اوپر سے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ کرایہ بہت ہو گیا ہے، مارکیٹ کا بہت ہو گیا، 70 روپے۔ پہلے کتنا لے رہے تھے؟ پہلے 60۔ پہلے 60، 10 روپے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس لیا جائے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ رمشا اسماعیل، ٹی 21۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے ٹرانسپورٹرز بھی پریشان۔ قائد آباد منزل پمپ پر مسافر اور ٹرانسپورٹرز پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں مسافر کم ہو گئے، کرایہ پورا نہیں دیتے، ہم نے تو کرایہ نہیں بڑھایا۔ حکومت کچھ ہم غریب عوام کا بھی سوچے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी मुतासिर कर दिया। कायदाबाद मंजिल पंप पर मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स फट पड़े। कहते हैं कि मुसाफिर कम हो गए, किराया पूरा नहीं देते, हमने तो किराया नहीं बढ़ाया। हुकूमत कुछ हम गरीब आवाम का भी सोचे। मुसाफिरों का कहना था कि महंगाई में हम कैसे सफ़र करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी। हुकूमत महंगाई को कम करने की हिकमत अमली बनाए। किराया बहुत महंगा हो गया, सवारी गाड़ी वाले जो है डीजल नहीं पूरा कर रही है और हम परेशान बैठे हैं। अभी देखो सवारी बैठा हुआ है, 9 बजे का टाइम था और गाड़ी वाला बोलता है भाई मेरा डीजल का पैसा नहीं पूरा हो रहा है। डीजल महंगा है, गरीब आदमी क्या करे, किराया तो दे नहीं रहे, हमने किराया बढ़ाया ही नहीं है। सर हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि फौरन अपील है हमारा कि भाई डीजल की कीमतों में कमी लाएं, वरना सवारी कोई भी पैसे नहीं दे रहा है, कोई किराया नहीं दे रहा है। सर मैं मुसाफिर हूँ, मैं लाड़काने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि मैं 1500 रुपए कमाने वाला बंदा हूँ। अभी 2500 इनको किराया दूँ, हालांकि इनका भी कसूर है। बोले भाई तेल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए। कैमरामैन इमरान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत तकरीबन 400 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है। ट्रांसपोर्टर से लेकर घरेलू अखराजात तक हर शोबा मुतासर हो रहा है, जबकि चिंची रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशान हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने फिर हमला कर दिया। पेट्रोल की कीमतों ने आवाम का बजट हिला डाला। चिंची रिक्शा ड्राइवर भी सोचों में पड़ गए। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल तकरीबन 400 रुपए पर पहुंच गया। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया है। चिंची ड्राइवर का कहना है कि पेट्रोल महंगा होता है तो अखराजात दुगने हो जाते हैं। ऊपर से LPG भी महंगी हो गई है, जिससे रोजगार चलाना मुश्किल हो गया है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। गरीब आवाम के लिए सफर मुश्किल हो रहा है। जो बंदा कंपनी में काम करता है, 20,000 25,000 उसकी सैलरी है, वो उसके 15,000 20,000 सारा पेट्रोल में खर्च हो जाता है। घर वो क्या बचाएगा, अपनी बीवी बच्चों को क्या लेके देगा, राशन में उसको मसला आता है। भाई सबको नुकसान हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, आवाम को भी नुकसान हो रहा है। इस वजह से जो ना हर बंदा परेशान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी जो ना नरमी होना चाहिए पेट्रोल में, गैस में। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। हर हफ्ते कोई ना कोई नया बोझ डाल दिया जाता है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा आवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है, जबकि महंगाई का दबाव कम होने के बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने जहां आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है, वहीं ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी शदीद मुतासिर हुए हैं, जिनके लिए रोजगार कमाना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने ऑनलाइन काम करने वालों का रोजगार ठप कर दिया। आए रोज की कीमतों में इजाफे ने हवाई रोजी कमाने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। शहर में सड़कों की खाक छानने वाले राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से उनकी आमदनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पेट्रोल महंगा होने का अमल हमारे लिए एक इम्तिहान बन जाता है। दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर ही खर्च हो जाता है। घर के अखराजात और अहले खाने की किफालत कैसे करें? कुछ कर नहीं पाते, क्या करें। हमारा रोजाना घर जाते हैं तो घर में जो है ना कोई चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, परेशान ही रहते हैं हर टाइम। तो गुजारा नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। कभी कैसे गुजारा कर रहे हैं, कभी कैसे, लेकिन मजबूरी है हमारी। हमारा पेट्रोल तो आ रहा है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत है। ये तो अपना पेट भरने के लिए जो है इन लोगों ने ये सारा सिलसिला चलाया हुआ है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी ना की गई तो उनके लिए रोजगार जारी रखना मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अप्रैल 2026 की माहाना रिपोर्ट अमेरिका ईरान आर्जी जंगबंदी के बाद सरमायाकारों के एतबात में बेहतरी हुई, जो ताख़ीर और ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुतालिबात पर बेयकीनी में इजाफा हो गया। अप्रैल 2026 में हर्नड इंडेक्स में 14,250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अप्रैल 2026 गैर मामूली उतार चढ़ाव और तेजी का महीना साबित हुआ। 100 इंडेक्स में एक माह के दौरान 14,250 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माह अप्रैल के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 9.60% इजाफे के साथ 1,62,994 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,75,298 पॉइंट्स, जबकि कम तरीन सतह
सतह 1,47,743 पॉइंट रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक माह के दौरान 905 अरब रुपए मालियत के 19 अरब 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1488 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया, जिसके बाद मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 18,022 अरब रुपए हो गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी के बाद आलमी सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी देखी गई, जिसके असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत अंदाज में मरतब हुए। ताहम माह अप्रैल के अख्ताम पर मार्केट में दबाव देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ताख़ीर और ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुतालबात पर गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को मोहतात बनाए रखा है, जिसके बाइस मार्केट में मुनाफा लेने का रुझान गालिब रहा और उतार चढ़ाव में इजाफा देखने में आया। अशरफ खान, सिटी 21। कराची पोर्ट पर तारीखी पेशरफ्त, पहली बार मुकम्मल ट्रांसशिपमेंट जनरल कार्गो जहाज MV एयरलाइन की कामयाब बर्थिंग। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने इसे पाकिस्तान के बहरी शोबे के लिए अहम संग मील करार दे दिया। कहते हैं इस कामयाबी से कराची बंदरगाह खित्ते के बड़े तजारती मरकज़ के तौर पर उभरेगी। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लाहाती पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। कराची पोर्ट पर तारीखी कामयाबी, बहरी तिजारत में नई राहें खुल गईं। जनरल कार्गो जहाज की पहली ट्रांसशिपमेंट। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने इसे पाकिस्तान के बहरी शोबे के लिए अहम संग मील करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि इस पेशरफ्त से पाकिस्तान की बंदरगाही सरगर्मियों में नई वसत पैदा होगी। उन्होंने कहा कि माजी में कराची बंदरगाह पर सिर्फ कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट की जाती थी, अब कराची पोर्ट ट्रस्ट जदीद ट्रांसशिपमेंट दौर में दाखिल हो चुका। मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी के मुताबिक जनरल कार्गो, बल्क, ब्रेक बल्क और गाड़ियों की हैंडलिंग के आगाज से नए तिजारती इम्कानात रोशन होंगे, जबकि कराची पोर्ट खित्ते के एक अहम ट्रांसशिपमेंट मरकज के तौर पर उभर रही है। आलमी तिजारती रास्तों को जोड़ने में कराची पोर्ट का किरदार मजीद मजबूत और बहरी शोबे में जारी इस्लाहात के मुस्बत असरात वाज़े तौर पर सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियों में तोसी से न सिर्फ पाकिस्तान की बहरी तिजारत को फरोग मिलेगा, बल्कि मुल्क की मईशत, बरामदात और इलाकाई तिजारती रवाबित में भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। FBR ने अप्रैल 2026 में 956 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है। ताहम माहाना हदफ के मुकाबले में 73 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल के 10 माह में मजमूई शॉर्टफॉल बढ़कर 683 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसने मालियाती अहदाफ पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मईशत का हिसाब बिगड़ गया। FBI का टैक्स हदफ पूरा ना हो सका। टैक्स वसूली से मुतल्लिक अहम माशी अदद-ओ-शुमार सामने आ गए। जरा के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अप्रैल 2026 में 956 अरब रुपए का टैक्स जमा किया, जबकि मुकर्रर माहाना हदफ 1029 अरब रुपए था। जरा का कहना है कि अप्रैल के दौरान इनकम टैक्स की मद में 446 अरब रुपए वसूल किए गए। सेल टैक्स से 320 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी से 125 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 65 अरब रुपए जमा हुए। माली साल जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक मजमूई रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़कर 683 अरब रुपए तक पहुंच गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि टैक्स हदफ में मुसलसल कमी हुकूमती मालियाती अहदाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है, जबकि आइंदा बजट में मजीद रेवेन्यू इक़दामात मुतवक्को हैं। नाजरीन, मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कश को रोजगार की तलाश। हॉक्स पे रोड ट्रक अड्डे पर बेशुमार मजदूर अपनी दिहाड़ी के मुंतजिर दिखाई दिए। कहते हैं कि आज छुट्टी के बावजूद काम करने पर मजबूर हैं। योमिया उजरत का बड़ा हिस्सा महंगाई की नज़र हो जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। मेहनत की धूप में जलते हैं ये लोग रोज, फिर भी लबों पे शिकवा नहीं, बस खामोशी का बोझ। दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तहम छुट्टी के बावजूद मजदूरों को अपनी दिहाड़ी की फिक्र है। कोरंगी में बेलचे हाथों में लिए मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों की राह तकते दिखाई दिए। महंगाई होगी, महंगाई बहुत हो गया, बहुत महंगाई हो गया, तो काम कोई नहीं, हम ऐसे ही फारिग बैठा हुए। हुकूमत के ये कहेगा बहुत महंगाई हो गया, आप खुद देख रहे हो कैसा महंगाई है भाई। हम ये हो गया तो हमारे को मजदूरी भी मिल जाते हैं, काम वाम भी नहीं, हम ऐसा ही सारा बैठा है, तुम सारे मजदूर को देख रहे हो आप खुद। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, जो धूप में खड़े हुए हैं, वो भी अगर मिल जाए तो नहीं होगी। हॉक्स बे ट्रक अड्डे पर काम करने वाले मजदूर भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान नजर आए। कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, जितनी भी दिहाड़ी कमा लें घर के खर्चात पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी बढ़ गई है और अगर हम लोग छुट्टी करके बैठे तो घर को बच्चों को खिलाएगा कौन और चलाएगा कौन। वो दूर से आते हैं, 500 तो हमारा किराया लग जाता है, उसमें फिर खाना है, पेट्रोल भी महंगा करते जा रहे।
बहुत परेशानी है, बस गुजारा हो रहा है, बस मुश्किल से बहुत गुजारा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए हमारे बारे में कुछ सोचे, कोई रेट बढ़ाए, मजदूरी के रेट बढ़ाए। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यौमिया उजरत में इजाफा किया जाए ताकि वो महंगाई के इस दौर में अपने खानदान का गुजर बसर बेहतर तरीके से कर सकें। कैमरामैन कयूम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मेहनत कशों का आलमी दिन, मगर कराची में महंगाई के बायस मजदूर आज भी रोजगार के लिए सरगर्दा। एक मेहनत कश का कहना है कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर मैंने काम नहीं किया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। द्वाशकील प्राचा की रिपोर्ट देखिए। मजदूर मगर मजदूरों के चेहरों पर थकन, छुट्टी का दिन मगर हाथों में औजार। आलमी यूम मजदूर मगर महंगाई और बेरोजगारी के खौफ के बायस शहर कायद में मेहनत कश आज भी रोजगार की तलाश में दर बदर दिखाई देते हैं। मेहनत कशों का कहना है कि हमारे नाम पर छुट्टी है, लेकिन अगर हमने काम ना किया तो घर कैसे चलाएंगे। अपने हिसाब से काम के हालात सही हो, मुल्क के हालात सही हो, काम चले, इसमें ये है। आज काम पैसे होते तब यहाँ कौन आता है काम के लिए, इसलिए लोग बैठे हुए सब फारग बैठे हुए इधर। मजदूर अभी क्या कर सकते हैं, जिन्हों की छुट्टी है वो छुट्टी मनाए, जिन्हों के पास जेब खाली है वो क्या करेंगे, वो तो बैठे हुए हैं इधर, खाली बैठे हुए हैं बस। खवातीन मेहनत कशों ने भी महंगाई का शिकवा किया और बोली महंगाई ने रोजगार के लिए बाहर निकलने पर मजबूर किया। छुट्टी नहीं कर सकते ना, छुट्टी करेंगे तो हमारे घर के खर्चे नहीं होते पूरे। खवातीन सब बेचारियाँ करती है, जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते हो तो बेचारे निकलेंगे ना। दूसरी जानिब कम उम्र बच्चे भी घर का चूल्हा जलाने के लिए मुशक्कत करने पर मजबूर दिखाई दिए। मजबूरी होती है, बस गुर्बत आ जाती है, इसलिए महंगाई हो गई है, इसलिए काम कर रहे हैं, मजबूरी होती है काम करने के लिए। दुनिया भर में मेहनत कशों को सराहने की तकारीब, रैलियां और सेमिनार्स अपनी जगह, लेकिन कराची का मेहनत कश आज भी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कैमरामैन मन्नान के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा नौवीं सिम्पोजियम का आगाज़ हो गया है। मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और मुल्क भर से माहिरीन सेहत शरीक हुए, जहां बच्चों की बीमारियों, जदीद इलाज और तिबी आगाही पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इब्राहिम रिद की रिपोर्ट देखिए। इल्म, तहकीक और इलाज एक साथ, मकामी होटल में डॉक्टर्स का इल्मी मेला सज गया। बच्चों की सेहत से मुतालिक आगाही और जदीद तिबी रुझानात के फरोग के लिए कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा 9वें सिम्पोजियम का आगाज हो गया। मकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में मुल्क भर से माहिरीन सेहत शरीक हुए। तकरीब में अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल और प्रोफेसर मोहसना इब्राहिम ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे सिम्पोजियम्स और वर्कशॉप तिबी शोबे में नई मालूमात और आगाही फराहम करते हैं। सिम्पोजियम के अंदर हमारे यहाँ जो है कि 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, वर्कशॉप्स करवाई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, जिसमें नर्सिस का भी हुई हैं, डॉक्टर्स की भी हुई हैं, पैरामेडिक्स की भी डिफरेंट क्या कहते हैं वर्कशॉप्स हुई हैं, और उनको नए जदीद जो भी तरीके हैं उनके बारे में उनको आगाही दी गई है। कभी कभी डबलिंग, ट्रिपलिंग, इवन कभी क्वाड्रिपलिंग भी करनी पड़ती है, तो इस तरह के और इदारों की भी ज़रूरत है जो कि सब स्पेशलिटीज़ को भी प्रमोट करें, न्यूरोलॉजी को, नेफ्रोलॉजी को, कार्डियोलॉजी को, और इसको जो ये सब स्पेशलिटीज़ हैं इनको और स्ट्रेंथन करने के लिए काम होना चाहिए ताकि पीडियाट्रिक केयर और बेहतर हो। सिम्पोजियम में मुख्तलिफ सेशंस, तहकीकी मुबाहिसों और तरबियती नशिस्तों का इनाकाद भी किया गया। इस मौका पर प्रोफेसर इशफाक सिंधु और डॉक्टर सदफ आसिम का कहना था कि मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। NHH अस्पताल में मुल्क भर से मरीज रिपोर्ट होते हैं। अगर अवाम में फौरी तशखीस और बर वक्त इलाज की आगाही दी जाए तो कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। हमारा इस सिम्पोजियम को मुनक्कद करने का मकसद ये था कि आजकल दुनिया कहाँ खड़ी है, हमने भी अपने आप को वहीं पे लेकर जाना है, और हम ऐसा अपनी सारी स्पेशलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं और लोगों को भी, और प्लस अपने जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको आगाही दे रहे हैं। खास तौर पे मैं अपनी फील्ड की भी अगर बात करूं तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की बहुत सारी जो पैदाइशी बच्चों में गुर्दे की बीमारियां हैं, और इसके अलावा अदर सब स्पेशलिटीज़ में जिसमें कि बच्चों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है अर्ली प्रॉब्लम से। तकरीब में प्रोफेसर अताउर रहमान और अस्पताल के इंतजामी अफसरान ने भी खिताब किया, जबकि मेहमानों में शील्ड्स और ताइफ भी तकसीम किए गए। माहिरीन के मुताबिक ऐसे इल्मी और तिब्बी फोरम्स न सिर्फ डॉक्टरों के पेशावराना सलाहियतों में इजाफा करते हैं बल्कि मरीजों के बेहतर इलाज की राहें भी हमवार करते हैं। कैमरामैन काशिफ कैमरा, इब्राहिम रिंद, सिटी 21। यौम मजदूर के मौका पर मेहनत कश खवातीन को खिदमात पर अवार्ड दिए गए। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम चेयरमैन नासिर अहमद ने कहा है कि तहरीक पाकिस्तान से लेकर तकमील पाकिस्तान तक खवातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल रहा है, और आज भी मुल्क के तमाम शोबाए ज़िंदगी में खवातीन अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही हैं।
भर की तरह कराची में भी यौम मजदूर मनाया गया। इंटरनेशनल लॉयर फोरम की जानब से मजदूरों से मंसूब तकरीब रखी गई। ILF के मरकजी दफ्तर में मुनक्कदा तकरीब में मेहनत कश खवातीन को खिदमात पर एवार्ड दिए गए। एवार्ड हासिल करने वाली खवातीन में पोलियो वर्कर अम्बरीन तालिब, अंजलिका आसिफ, एंजली रीमा, अनीला रशीद, अजमत असलम, वकील इंसानी हुकूक बानो, आर्किटेक्ट गजाला शफी, आलमा गुलशन खैर मोहम्मद, लाइबा मकबूल, मैगडेलन रिचर्ड, सबीना असगर, मारिया रिचर्ड, मरियम जहरा, रुखसाना नाज, सादिया मकबूल, पोलियो वर्कर समरीन मोहम्मद याकूब, सना सलमान, सिस्टर शकीला, दारुल सुकून की सिस्टर फरजाना मकबूल और फजीलत इनायत, सिस्टर नरगिस सादिक, सिस्टर सोबिया जेम्स, दारुल सुकून की सिस्टर वेनिस, ऑफिस असिस्टेंट ड्याला रिचर्ड और डायरेक्टर GWS सुंबल भट्टी शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए ILF चेयरमैन नासिर अहमद एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान की मेहनतकश खवातीन मुल्क की तरक्की और फिलाह में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। वो मर्दों के शाना बशाना काम करें और वो पाकिस्तान के तमाम शोबों में काम कर रही हैं, और अगर उनको किसी भी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना है, कोई हरासमेंट है, तो उसके लिए ILF उनके साथ खड़ी है। तकरीब में शरीक खवातीन ने कहा कि अवार्ड से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और ये ऐसे नासिर साहब ऐसे इंसान हैं जो औरतों की जो है मेहनत की मशक्क़त की जो है उसको समझते हैं। लॉयर फॉर्म्स की कि उन्होंने इस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया और ख़ास तौर उन्होंने ख़वातीन की उस मेहनत को सराहा है जो वो अपने अपने फील्ड में करती हैं। तो ख़वातीन को मेरा यही पैगाम है कि वो इसी मेहनत लगन जद्दोजहद से आगे बढ़ती रहें और अपने काम जारी। तकरीब में ILF चेयरमैन ने ऐलान किया कि अगर किसी मेहनतकश खातून को कानूनी या दीगर मसाइल दरपेश हो तो ILF उनके साथ मिलकर उनका मसला हल करने में मदद करेगा। कैमरामैन जुबैर के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21।